अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। सो अब हमारा सेशन है 10:45 पर, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन सा सेशन है। हमारा सेशन है ये वाला BT101 इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन 1। इसके 32 टॉपिक्स हमने करना है। इसके सेशन में हमें 36 टॉपिक से पढ़ा हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर ये वाला टॉपिक्स भी कवर कर लेंगे, ठीक है। टेक क्विज कर लेते हैं 32 टॉपिक नंबर। तो वही यहाँ पर photosynthesis and chemosynthesis are the two processes used by dash for production of food. Producer response. Which is true about destination of sunlight. ये ग्रीन हाउस की फॉर्म में रहती है, एयर में, ठीक है। आगे चल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू इकोलॉजी बाय अतिया शो। यहाँ पर मैं आपको वेलकम करना भूल गई थी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अब कर देती हूँ। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है, ठीक है। मैं तो सेशन भी रिकॉर्ड करती हूँ, उसमें किसी की पिक्चर नहीं आती, मैं उसको ब्लर कर देती हूँ, सही है। तो आप लोग वो भी देख सकते हैं कि सेशन में क्या क्या बातें होती हैं। ये ले रहा है ज़रूरत से ज़्यादा टाइम, तो हम कर देते हैं क्रॉस, सही है। और अब हम इसको वापस से ले लेते हैं, ठीक है। विच इज़ नॉट ट्रू फॉर अ बायोम। आप लोगों को पता, मुझे पता है क्या इसके लिए ट्रू नहीं है। देना का पास सिंगल स्पीशीज, ठीक है। आगे चल लेते हैं। हो गए तो करेक्ट और एक हो गया इनकरेक्ट, और हमने अटेम्प्ट ही कर पाया, ठीक है। सारा कोई बात नहीं, हम चलते अपनी वीडियो को अच्छे से देख लेते हैं। Epiphysemantism is another type of camouflaging or the protection strategies of the prey against the predators. Epiphysemantism में animals की appearance जो है वो इस तरह से वो खुद को present करते हैं कि they present or they advertise the warning signals for their predators. So ये warning signals इस तरह के हैं कि we are toxic, we are not of good taste and we could be dangerous for you. So predator would try to be away from that animal because they are threatened by these advertising or the warning signals. ये advertisement जो है इन signals की, it is done by very bright and high contrasting colors. There could be different odors which are released from the scent glands of these animals. और या ये animals इस तरह के sound generate करते हैं जो कि एक threatening या warning signal हो सकता है. And other type of strategy is aggressive behavior. So that aggressive behavior will repel the predator from the prey or the potential prey. Animals epiphysemantism में either एक ही strategy के ऊपर depend करते हैं या फिर वो इसका combination जो है in different strategies का, for example color, order और noise, in different combinations को भी इस epiphysemantism intensity को enhance करने के लिए use कर सकते हैं. So the function सिर्फ एक ही है कि predator के attack को minimize किया जा सकता हो. तो ये epiphysemantism में animal actually they are toxic, they have the poisonous glands too, they create noises, they are aggressive too, they attack their predators as well. So they have these characteristics. लेकिन इसकी advertisement जो है वो बहुत ही effective way में की जाती है. उस advertisement की effective होने की वजह से ही predator जो होगा it would stay away from these animals. And it is beneficial for both, obviously, because the prey is saving itself and predator is staying away from a toxic prey or an aggressive prey. तो इसमें predator और prey दोनों की ही population की survival के chances जो हैं वो increase हो जाते हैं. So signals की types जो है उनको हम दो categories में divide करते हैं. One is primary and other is secondary. Primary signals में वो signals हैं जो कि easily visible हैं predators के लिए. For example, their color patterns, the smells or the scents released by their body,
they are clearly visible or detectable by the predators. Secondary जो stimulus या secondary signals हैं, they are invisible because they could be in the form of ultrasonic noises. तो सिर्फ एक स्पेसिफिक ग्रुप या स्पेसिफिक स्पीशी जो है प्रेडेटर की वो उन सिग्नल्स को आइडेंटिफाई कर सकती है. For example, in ultrasonic noises, only the bats can identify or they can detect the signal, the warning signal, but not the other predators. They can detect that ultrasonic noise. So this is a kind of invisible or comparatively difficult to detect type of warning signal. Primary signals, जैसे examples में, it is a frog which is called the poisonous dart frog. They have a very bright colors, and these bright colors they contain different patterns too. For example, like this beetle, it has the very bright color markings and the patterns on its body. So these colors, they are a very clear signals that these animals are dangerous or they could be aggressive, so it would threaten the predator. So these effective colors are red, yellow, black and white because these colors are easily identified by their predators. And secondly, these type of color, they would resist any kind of changes even in shadow or in light. तो कलर्स का जो ब्राइटनेस है और उनका कंट्रास्ट है वो शेडो में भी और लाइट दोनों में ही मेंटेन रहता है, वो डिमिनिश या चेंज नहीं होता. तो इनकी इफेक्टिवनेस जो है इस वार्निंग सिग्नल की वो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होती, ऑल्दो के लाइट और इंटेंसिटी चेंज हो रही होती है. सो द वार्निंग कलरेशन इट इवॉल्व्स इन रिस्पॉन्स टू द बैकग्राउंड. मोस्टली उसी कलर के पैटर्न्स होंगे या वैसे ही कलर्स होंगे जो कि उनके जो बैकग्राउंड कलर है उसमें बहुत क्लियर कट कंट्रास्ट के साथ नज़र आते हैं. तो कैमोफ्लेजिंग से इस सेंस में डिफरेंट है, इसमें बॉडी के कलर्स उसको बैकग्राउंड का हिस्सा नहीं बनाते बल्कि उसको बैकग्राउंड से प्रोमिनेंट कर देते हैं, तो वो ईजिली identify हो जाए by its predator. Instead of hiding, actually they are advertising their presence. So it's very much opposite to the camouflaging technique. The second is the light conditions. जिस तरह की भी लाइट कंडीशंस होंगी ये कलर के पैटर्न्स जो हैं वो उसके अकॉर्डिंग चेंज होना शुरू हो जाएंगे. इन डार्क दे वुड बी ब्राइटर, दे माइट बी इरिडिसेंट, और लाइट में इनके कलर्स जो हैं वो ब्राइट हैं और हाई कंट्रास्ट के साथ हैं. सेकेंड थर्ड थिंग इज द प्रेडेटर विजन, कि हाउ डिस्टेंस जो है और उसकी विजन जो होगी वो कितनी शार्प है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन कलर्स का पैटर्न और इनकी इंटेंसिटी जो होगी क्रोमेटोफोर्स की वो डिसाइड होती है. कलर के अलावा जो दूसरे विजिबल और डिटेक्टेबल सिग्नल्स हैं, दीज आर ऑर्डर, साउंड एंड एग्रेसिव बिहेवियर. फॉर एग्जांपल द टाइगर मोथ, दिस इज द टाइगर मोथ एंड इट हैज़ अ बिटर टेस्ट, so it is not profitable for its predators, and once a predator try to catch it, other than its bitter taste, it would start producing ultrasonic sounds, and the combination of these sounds and taste, it would threaten it further, so it would increase the intensity of the warning signal for predators. skunk एक और एग्जाम्पल है जिसमें कि scent glands हैं, और ये सेंट ग्लैंड्स एक बहुत ही बैड नॉक्शियस ऑडर प्रोड्यूस करते हैं विच इज़ नॉट लाइक बाय द प्रेडेटर एंड दे वुडंट लाइक टू गो क्लोजर टू स्कंक्स. डार्ट फ्रॉग्स के बॉडी इट कंटेन्स वेरी ब्राइट कलर पैटर्न्स, बट देयर स्किन इज पॉइजनस टू. स्किन कंटेन द पॉइजन ग्लैंड, सो इफ दे आर ईटन बाय द प्रेडेटर इट वुड बी पैरालाइज्ड. सो इवन वी कुड से कि मोस्ट पॉइजनस एनिमल्स में से एक एनिमल जो है वो पॉइजनस डार्ट फ्रॉग है. Velvet ant is another example. It has sting and it creates noise. तो दोनों तरह के combinations को use करके ये एक warning signal के तौर पर use करती है. Let's see कि how this noise is generated by the velvet ants. See, she'll squeak now because I'm pressing on her only lightly. I don't want to hurt her. इस वीडियो में आपने देखा कि कैसे एक वेलवेट एंट जो है वो एक नॉइज प्रोड्यूस करती है वंस इट इज अंडर स्ट्रेस और अंडर थ्रेट. सो दैट इज वन स्ट्रेटजी. एपोसिमेटिज्म की और जो एग्जांपल्स हैं उनमें से वन कॉमन एग्जांपल इज द ब्लैक विडो स्पाइडर, एंड दैट ब्लैक विडो स्पाइडर इट प्रोड्यूसेस न्यूरोटॉक्सिन्स. वंस इट स्टिंग्स इट्स प्रेडेटर इट वुड रिलीज द न्यूरोटॉक्सिन्स और रिजल्टेंटली पार्शियल और कंप्लीट पैरालिसिस अपेयर हो सकता है उसके प्रेडेटर की बॉडी में. हनी बैजर इज अ मैमल, और इसने एपोसिमेटिज्म के लिए जो स्ट्रेटजी चूज़ की है दैट इज़ अग्रेसिव बिहेवियर. सो दे हैव शार्प क्लॉज, दे हैव शार्प टीथ एंड दे आर टू अग्रेसिव टू थ्रेटन इवन लायंस. सो लेट्स
watch their aggressive behavior in this video, how this small mammal is fighting with the larger predators. And attacks and continue to move if another animal is biting them. Their skin is so thick that bee stings, porcupine quills, arrows, and bites from larger predators don't often pierce it. Their vulnerabilities, so their eyes, ears, and tail, are all very small as to reduce exposure to attack. They have very strong bites with enough jaw strength to crack wounds. So this is interesting कि कैसे एक छोटा सा एनिमल एक बहुत बड़े एनिमल को अग्रेसिव एनिमल्स को थ्रेटन करने में कामयाब हो जाता है बाय यूटिलाइजिंग दिस अग्रेसिव बिहेवियर. एपोसिमेटिज्म की प्रेवलेंस, it is prevalent both in terrestrial and marine ecosystem. Mostly insects, they follow that strategy, aposematic strategies, but marine animals, certain mammals, in case of badger we have seen it already. Marine animals में nudibranch, crown of thorns, starfish, they are also considered कि ये bright color patterns को stripes की form के अंदर as a warning signal use करते हैं against their predators. एपोसिमेटिज्म में एक और जो एग्जांपल है, इट कुड बी वनामस ऑक्टोपस. वनामस ऑक्टोपस की जो मेंटल है, इट वुड कंटेन इरिडिसेंट ब्लू रिंग्स जो कि डार्कनेस में बहुत ब्राइट और चमकती हुई जो है वो नज़र आती हैं, एंड दे आर कंसिडर्ड एज अ वार्निंग सिग्नल फॉर देयर प्रेडेटर, एंड इट इज़ कंसिडर्ड द वन एग्जांपल ऑफ एपोसिमेटिज्म. तो फ्रेंड्स हमारी वीडियो हो गई कंप्लीट, हमारे लेक्चर की वीडियो. तो हमारे पास है टॉपिक नंबर 32 एपोसिमेटिज्म. ओके, अब इसकी रीडिंग कर लेते हैं. Unlike camouflage, some animals exhibit or advertise their harmful nature to their predators as a warning signal. These advertisement signals could be one or combination of following: color, odor or smell, sound, aggression. The signals prevent the attack and are beneficial for both the prey and predator. The signals are divided into two types of primary ones, which are easily detectable, are visible, such as color. Secondary ones, which are invisible, as ultrasonic noise for specific predator. शोर नहीं करो. Primary signals are bright, highly contrasting colors and patterns. Most effective colors are red, yellow, black, and white. These make the animal more visible and distinguishable from its surroundings, and are able to resist changes in the shadow and lightning. सही है. तो हमारे पास है evolution of warning colors is influenced by the background, light conditions and predators vision. Other such signals are sound, smell or odor. ठीक है. and aggression, for example tiger moth, skunk, velvet and honey badger. ठीक है. Aposematism is prevalent in both terrestrial and marine animals. For example, multi-branch, crown of thorns, starfish and octopus, etc. In this lesson, the students will learn about aposematism and aposematism strategies. ठीक है. तो हम लोग इसकी जो क्या कहते हैं उसे, Aposematism is another type of camouflaging or the protection strategies of. हम लोग इसकी जो है ना स्लाइड्स हम इसकी वीडियो से ही पढ़ लेते हैं. ठीक है. क्योंकि ऐसी पीपीटीज जो है वो डाउनलोड मतलब अपलोड नहीं हुई है एलएमएस पर, तो हम इसकी स्लाइड्स जो है ना वो वीडियो से ही पढ़ते हैं. एपोसिमेटिज्म यहाँ पर हमारा टॉपिक है. उसके अंदर हमारे पास है अपीयरेंस ऑफ एन एनिमल दैट वार्न्स प्रेडेटर्स इट इज टॉक्सिक, distasteful or dangerous. Advertisement of signals, color, odor, sound, aggression. ठीक है. तो जहाँ पर स्लाइड चेंज होगी वहीं पर हम पढ़ लेंगे. ठीक है. तो यहाँ पर आ गया फंक्शन इज टू प्रिवेंट अटैक, बेनिफिशियल फॉर बोथ predator and prey, saving them from harm. Types
सिग्नल्स प्राइमरी है इजीली डिटेक्टेबल कलर्स लाइक कलर्स, ठीक है। सेकेंडरी विजिबल अल्ट्रासोनिक नॉइज फॉर स्पेसिफिक प्रेडेटर, सही है। उसके बाद हमारे पास आ गया प्राइमरी सिग्नल्स, ब्राइट एंड हाई कंट्रास्ट कलर्स और पैटर्न्स सच एज स्ट्राइप्स, इफेक्टिव कलर्स आर रेड, येलो, ब्लैक एंड वाइट, कलर्स रेजिस्ट चेंजेस इन शेडो एंड लाइटिंग, ठीक है। चलिए, warning coloration evolves in response to background light conditions, predator vision, other visible signals, odor, sound, aggressive behavior, ठीक है। उसके बाद हमारे कर लेते आगे, हमारे पास है एग्जाम्पल्स हैं टाइगर मॉथ, बिटर टेस्ट एंड अल्ट्रासोनिक साउंड्स, skunk, noxious odor, ठीक है, dart frog, poison, velvet ant, stink and noise, ठीक है। हमने अभी हमें वीडियो पे दिखाई थी इसमें, सही है। तो उसके बाद यह चाहता है जनाब एग्जाम्पल्स में ब्लैक विडो स्पाइडर, न्यूरोटॉक्सिन, ठीक है, और हनी बैजर एग्रेसिव, सही हो गया। उसके बाद में हमारे पास बहुत टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन इकोसिस्टम, मोस्टली इंसेक्ट्स, मेरीन एनिमल्स, न्यूडी ब्रांच, क्राउन ऑफ थॉर्न्स, स्टारफिश, ठीक है। इस पर चल लेते हैं हमारे पास में है अब इरिडिसेंट ब्लू रिंग्स ऑन द मेटल्स ऑफ द वेनोमस ऑक्टोपस आर कंसीडर्ड बाय सम टू बी एपोस्मेटिक, ठीक है, सही हो गया जनाब। इसकी हमने पीपीटीज भी पढ़ ली हैं, पीपीटीज हम यहाँ से भी पढ़ सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अगर डाउन वहाँ पर अपलोड नहीं हुई है परेशान की जरूरत नहीं है, हम लोग वीडियो से पीपीटीज को पढ़ सकते हैं, ठीक है। अब हम अपना पोस्ट असाइनमेंट को ले लेते हैं, पोस्ट असेसमेंट, ठीक है। Dash is the type of camouflage in which animals use visual illusions and protect themselves without hiding. अब aposematic और mimicry, crypsis, motion dazzle, ये mimicry हो सकते हैं। camouflage का मेरे ख्याल से mimicry है। आगे चल लेते हैं। अब ये लेगा टाइम, हमें करना पड़ेगा अपना पुराना काम, इसको कर लेते हैं क्रॉस, फिर टेक कर लेंगे, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी इज एक्सिबिटेड बाय हैविंग फिश, फायरफ्लाई, स्क्विड, हैचेट फिश, जेलीफिश। ट्रांसपेरेंसी मेरे ख्याल में जेलीफिश। Crypsis might be infective when animals move, animals float near the surface of water, animals make body reflective, animals eliminate shadow. ये हो गया। अस्सलामुअलैकुम। So I'm sorry, वो मैंने पीछे वीडियो लगाई हुई थी तो उसको रेफर चले इसको कर लेते हैं। Born industrial rapper के मतलब English animals use visual illusions and protect themselves। ये बात तो बाकी तो नहीं होगा तो थैंक्स लॉर्ड। उसके बाद हम चलते हैं आगे हमारे पास अब यहाँ पर हम कर देते हैं डन। ये टॉपिक हमारा हो गया है डन, ठीक है। तो उसके बाद हम चल लेते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 33। यहाँ पर इसका टॉपिक है एटमॉस्फेयर एंड इट्स एवोल्यूशन 1, ठीक है। क्विज ले लेते हैं इसका प्री असेसमेंट, ठीक है। एलजी वर्ड्स फीड ऑन एलजी, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा ये जनाब, हम इसको कर दें सेव। आगे है हवाईयन हनी क्रीपर फीड्स ऑन, ये फीड्स ऑन सीड्स, ठीक है। ये वाला सीड्स पर फीड करता है। आगे चल लेते हैं डैश पर डायनामिक इकोसिस्टम। तो आगे चलते हैं। द सिस्टम ऑफ कार्निवोर्स इज मोर एफिशिएंट इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है। तो हमारे सारे उधर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे। अब हमारे पास आगे वीडियो, इसको अच्छे से सुन लेंगे, ठीक है। सॉरी इसकी आवाज़ बंद की ecosystem, or we could say कि atmosphere of earth is a very important component in any ecosystem, और we could say कि अर्थ किसी भी इकोसिस्टम की जो फिजिकल फैक्टर्स हैं उसमें एटमॉस्फेयर एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करती है।
हम अब स्टडी करेंगे कि अर्थ की एटमॉस्फेयर, इसकी कंपोजिशन क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसकी स्ट्रक्चर क्या है और इसका एवोल्यूशन कैसे हुआ। तो एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज बेसिकली दीज आर द लेयर्स ऑफ गैसेस अराउंड द प्लैनेट अर्थ, और इन लेयर्स ऑफ गैसेस को हम कॉमनली एयर का नाम देते हैं। एयर और एटमॉस्फेयर अर्थ को चारों तरफ से सराउंड किए हुए होती है, और इन गैसेस की रिटेंशन अराउंड द प्लैनेट अर्थ इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ which is holding all these gases and it's not allowing them to go away as happened with other planets. So now we study कि how this atmosphere was evolved. हमें मालूम है कि हमारी अर्थ का जो origin है वो 4 billion years ago शुरू हो गया था। तब से ही एटमॉस्फेयर भी डेवलप होना शुरू हो गई, लेकिन ये वो एटमॉस्फेयर नहीं थी जिससे कि हम आज फेमिलियर हैं। तो एटमॉस्फेयर अर्ली एजेस में एक लंबे प्रोसीजर या प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन में से गुजरती रही, और ये प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन बिलियंस ऑफ ईयर पर मुश्तमिल है। सो इस एवोल्यूशन की बेस पर हम एटमॉस्फेयर की जो डेवलपमेंट की एवोल्यूशन के फेजेस हैं उनको 3 फेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट वन इज़ फर्स्ट एटमॉस्फेयर। फर्स्ट एटमॉस्फेयर बिल्कुल वैसे ही थी जैसे कि किसी नेबुला की एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन हो सकती है। नेबुला मीन्स दैट इज इनिशियल प्लैनेट, इट इज इनिशियल फॉर्म ऑफ द प्लैनेट, जिससे कोई भी प्लैनेट जो है वो उसकी बर्थ होती है। सो इट्स अ डिस्क ऑफ डर्ट एंड गैसेस व्हिच इवॉल्व्ड फ्रॉम द पार्ट्स ऑफ द गैलेक्सी। So its composition in this formation of nebula, it happens 4 billion years ago, and at that time जो gases इस atmosphere में मौजूद थी, these were hydrogen, methane, helium, ammonia and water vapors, और इनकी composition आज की atmospheric composition से totally different थी। इसके बाद next जब evolutionary stage आती है, that type of atmosphere is called second atmosphere। सेकेंड एटमॉस्फेयर के टाइम पीरियड में अर्थ में जो बायोकेमिकल और उसमें जियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वोल्केनिक इरप्शन है। सो वोल्केनिज्म के रिजल्ट में गैसेस अर्थ की इनर सरफेस से उसकी कोर से और उसके मेंटल का जो पार्ट है अर्थ का, वहाँ से गैसेस रिलीज होती हैं अलॉन्ग विद द लावा, एंड दिस आउट गैसिंग ऑफ वोल्केनिज्म इट वाज सप्लीमेंटेड बाय दोज गैसेस व्हिच वर प्रोड्यूस्ड बाय द हैवी बम्बार्डमेंट ऑफ एस्टेरॉइड्स। वी नो कि इस फेज में अर्थ की डेवलपमेंट की एस्टेरॉइड की बम्बार्डमेंट वाज अ वेरी कॉमन फिनोमेनन। 24 आवर्स अर्थ जो थी वो एस्टेरॉइड से बम्बार्ड होती रहती थी। अब हमारी अर्थ के ऊपर ऐसे एस्टेरॉइड बम्बार्डमेंट इसलिए नहीं है कि हमारी एटमॉस्फेयर उसको ज़मीन तक पहुंचने से रोक देती है, बट एट दैट टाइम एटमॉस्फेयर वाज नॉट फुली डेवलप्ड एंड इट वाज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू स्टॉप दीज एस्टेरॉइड्स। सो एस्टेरॉइड बम्बार्डमेंट वाज कॉमन थिंग एंड वाज ब्रिंगिंग द गैसेज, वर प्रोड्यूसिंग द गैसेज। सो इन दोनों फिनोमेनन के रिजल्ट में नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और इनर्ट गैसेस हमारी एटमॉस्फेयर में ऐड होना शुरू हो गई। इनर्ट गैसेस की एग्जांपल फॉर एग्जांपल आर्गन। सेकेंड एटमॉस्फेयर ही के पार्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन जो कि एयर में रिलीज हो रही थी, वो वाटर बॉडीज के ओशंस जो थे उनमें डिजोल्व होना शुरू हो गए। लेट्स एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जांपल कि कार्बन डाइऑक्साइड व्हिच इज एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज डिजोल्व्ड इन द वाटर and it forms carbonic acid. Carbonic acid is highly unstable acid, so it quickly breaks down into hydrogen and bicarbonate ions. And these hydrogen and bicarbonate ions, once like they are present in the water, and these carbonates they are broken down and they form the carbonates. And these carbonates they obtain the calcium from the sediments or the rocks. So the calcium or magnesium rocks present at the bottom of oceans, they release their calcium and magnesium, which makes the bond with the carbonates in presence of water, and they form calcium carbonate rocks. तो calcium carbonate rocks, magnesium carbonate rocks, इसको हम limestone कहते हैं। ये एक important phenomenon था उस stage के ऊपर जबकि अर्थ जो थी वो के evolve हो रही थी, और ये metals इनसे जो कार्बोनेट्स बनते हैं ये सेडिमेंट्स के फॉर्म में इस ओशंस की बॉटम के ऊपर सेटल होना शुरू हो गई, एंड दीज आर रिजर्व्स ऑफ कैल्शियम एंड कार्बोनेट्स व्हिच विल बी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट्स एंड एनिमल्स इन फ्यूचर। एंड अदर थिंग इज कि ये वाटर रिलेटेड सेडिमेंट्स दे हैव बीन फाउंड इन द बॉटम ऑफ ओशंस इन फॉर्म ऑफ फॉसिल्स, और इनका जो है वो हम इसको कार्बन डेटिंग के थ्रू इन लाइमस्टोन की रॉक्स को डेट कर सकते हैं, और डेटिंग जो है वो हमें बताती है कि ये कार्बोनेट्स, कैल्शियम कार्बोनेट या लाइमस्टोन की जो रॉक्स हैं ये 3.8 बिलियन ईयर्स पहले से इनकी एवोल्यूशन जो था वो स्टार्ट हो गया था, और ये प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू रहता है। अब अर्थ की एटमॉस्फेयर जो है वो ग्रेजुअली डेवलप हो रही है, उसमें मॉलिक्यूलर फॉर्म में गैसेस जो हैं वो एड अप होना शुरू हो गई हैं। 3.4 बिलियन ईयर्स
पहले मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 का डेवलपमेंट होती है। इससे पहले N की फॉर्म के अंदर एटॉमिक फॉर्म में नाइट्रोजन मौजूद है, बट इट्स नॉट इन फॉर्म ऑफ N2। सो नाइट्रोजन विच इज़ एन एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ फ्यूचर ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स। तो उसका एवोल्यूशन एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है एटमॉस्फेयर की एवोल्यूशनरी प्रोसेस में। इस स्टेज के ऊपर अर्थ का टेम्परेचर वॉज वार्म, ऑल्दो यहाँ पर सोलर रेडिएशंस जो थी वो रेडिएट बैक हो रही थी, but still earth maintains to retain its temperature, and that was because of presence of carbon dioxide. ऑक्सीजन एटॉमिक फेज में इस एटमॉस्फेयर के अंदर मौजूद है, लेकिन 2.5 बिलियन ईयर्स पहले O2 की फॉर्म में ऑक्सीजन की फॉर्मेशन शुरू होती है, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप बिकॉज हमारी लाइफ का ओरिजिन प्लेनेट अर्थ के ऊपर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के ही मरहून मिन्नत है। सबसे पहले ऑक्सीजन एटॉमिक फेज के से बाद मॉलिक्यूलर फॉर्म या O2 की फॉर्म में फोटोसिंथेसाइजिंग साइनोबैक्टीरिया इसकी फॉर्मेशन करते हैं। सो दीज साइनोबैक्टीरिया दे आर सिंथेसाइजिंग ऑक्सीजन, दे आर यूटिलाइजिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्टिंग इट इनटू O2 molecular oxygen, and this molecular oxygen is being released in atmosphere. ये फिनोमिनन जिसमें कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में हमारे एटमॉस्फेयर में एडअप होना शुरू होती है, वो सारे इवेंट्स जिसमें कि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स स्पेशली साइनोबैक्टीरिया इन्वॉल्व हैं, इस इवेंट को हम ऑक्सीजनेशन इवेंट कहते हैं। सो फ्रेंड्स, हमारी ये वीडियो भी हो गई कंप्लीट। हम चलते हैं आगे। आगे हमारी रीडिंग है। रीडिंग में देखते हैं क्या है। रीडिंग में जनाब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं। एटमॉस्फेयर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस कॉमनली नोन एज एयर। एटमॉस्फेयर सराउंड द प्लैनेट and is retained by the Earth's gravity. So you get atmosphere evolved with the creation of planet. The first atmosphere was comprised of dust and gases. About 4 billion years ago, the Earth's atmosphere was comprised of hydrogen, methane, helium, ammonia, and water vapors. As a result of volcanic eruptions, the atmosphere transformed and more gases were later added by the bombardment of asteroids. ठीक है, such as nitrogen, carbon dioxide, and inert gases are gone. A sufficient portion of carbon dioxide was absorbed in water in the oceans. This dissolved carbon dioxide reacted with calcium and magnesium metals present in the ocean waters and formed carbonates, which were deposited in as sediments in the seabeds. ठीक है, some of the sediments have been dated back as old as 3.8 billion years. At 3.4 billion years ago, molecular nitrogen gas was formed. ठीक है, at this point Earth's temperature was warm due to the carbon dioxide present in the atmosphere and its greenhouse effect. About 2.5 billion years ago, oxygen was produced as a result of photosynthesis performed by cyanobacteria. So, this is known as Great Oxygenation Event. ठीक है, in this lesson the student will learn about atmosphere and its evolution. So, अब हमने क्या करना है, हमने अपने वीडियो खोलनी है, उसमें से 50 पढ़ना। Atmosphere of Earth is a very important component in any ठीक है, तो यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं। एटमॉस्फेयर एंड इट्स एवोल्यूशन। तो हमारा टॉपिक उसमें है एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज द लेयर ऑफ गैसेस कॉमनली नोन एज एयर सराउंड्स द प्लैनेट अर्थ व्हिच आर रिटेन्ड बाय अर्थ्स ग्रेविटी। ठीक है, एवोल्यूशन में आ गया फर्स्ट एटमॉस्फेयर। तो इसमें है कंपोजिशन ऑफ गैसेस लाइक सोलर नेबुला, तो डिस्क ऑफ डर्ट एंड गैसेस। ठीक है, एजिड 4 बिलियन ईयर्स अगो, हाइड्रोजन, मीथेन, हीलियम, अमोनिया, वाटर वेपर्स। ठीक है, बढ़ते हैं यहाँ पर हमारे पास सेकेंड एटमॉस्फेयर आउट गैसिंग फ्रॉम वोल्केनिज्म। ठीक है, सप्लीमेंटेड बाय गैसेस प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग हैवी बॉम्बार्डमेंट ऑफ अर्थ बाय ह्यूज एस्टेरॉइड्स, एडेड
नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इनर्ट गैसेस। ठीक है, चलो जी, सेकंड एटमॉस्फेयर में हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस डिसॉल्व इन वाटर। ठीक है, रिएक्टेड विद मेटल्स सच एज कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फॉर्म कार्बोनेट्स दैट वर डिपॉजिटेड एज सेडिमेंट्स। ठीक है, अब हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशन में। सेकंड एटमॉस्फेयर में वाटर रिलेटेड सेडिमेंट हैव बीन फाउंड dated from as early as 3.8 billion years ago, 3.4 billion years ago, molecular nitrogen formed। ठीक है, अर्थ टेम्परेचर was warm। सही है। फिर हमारे पास आ जाता है 2.5 billion years ago, ऑक्सीजन was developed, activity of photosynthesizing cyanobacteria, अच्छा, known as great oxygenation event। सही सही हो गया। अब सेकंड एटमॉस्फेयर में ही है एक्टिविटी ऑफ फोटोसिंथेसाइजिंग साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, और उसके बाद है सेकंड एटमॉस्फेयर नोन एज ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट। ठीक हो गया, ये हो गई हमारे टॉपिक की प्रॉपर्टीज भी हमने पढ़ ली। अब हम चलाते अपने पोस्ट असेसमेंट की तरफ। पोस्ट असेसमेंट में आकर के कंप्लीट करके स्टार्ट कुछ कर लेते हैं। मोनार्च बटरफ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिमिक पेटिसियन मिमिक्री, मिमिक मिलेरियन मिमिक्री, मॉडल मिलेरियन मिमिक्री, मॉडल पेटिसियन मिमिक्री। ये है मॉडल पेटिसियन मिमिक्री। मेरे ख्याल में एग्रेसिवनेस इज अपोस्मेटिक बिहेवियर ऑफ हनी बैजर, वेलवेट आंट, स्कंक, टाइगर मॉथ। एग्रेसिवनेस हनी बैजर का फॉर्म में। आगे चलते हैं। ड्यूरिंग ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट स्टार्ट प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन साइनोबैक्टीरिया। ऑल आर करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। चलो जी, ये हमारा टॉपिक हो गया कंप्लीट। चलते हैं अपनी थर्ड टॉपिक नंबर 34 की तरफ। ठीक है, तो टाइम भी देख लेते हैं। हमारा बस सेशन शुरू होने में 15 मिनट है पूरे। ठीक है, तो चेक कर लेते हैं ये वाला क्विज। सल्फर एग्जांपल्स ऑफ कीमोऑटोट्रोफ्स। ठीक है, आगे चलते हैं। फोटोसिंथेसिस एंड कीमोसिंथेसिस आर द टू प्रोसेसेस यूज्ड बाय डैश फॉर प्रोडक्शन ऑफ फूड प्रोड्यूसर्स। आगे चलते हैं। डैश इज एन एंटिटी इकोसिस्टम। आगे चलते हैं। तो ये हो गया सब करेक्ट, थैंक्स लॉर्ड। अब चलते हैं आगे अपनी वीडियो की तरफ। सॉरी, मैंने एज थर्ड एटमॉस्फेयर की एवोल्यूशन की नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज थर्ड एटमॉस्फेयर। सो सेकंड एटमॉस्फेयर जिसमें कि डिफरेंट गैसेस जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में डेवलप होना शुरू हो गई, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वाज द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड द रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। थर्ड एटमॉस्फेयर की फेज में टेक्टोनिक प्लेट्स का फिनोमेनन दैट वाज वेरी कॉमन। टेक्टोनिक प्लेट मूवमेंट के बारे में हम जानते हैं कि हमारी 7 कॉन्टिनेंटल प्लेट्स they were together in a form of a single plate or a single continent, which was called as the Pangea. But with the passage of time, Pangea break होना शुरू हो गया और ये different tectonic plates में splitting हो गया इसकी। और ये 7 continental plates या tectonic plates which are several continental tectonic plates, और major जो 7 continental plates हैं they were drifting away from each other। और इन continental plate या tectonic plate के phenomenon से एक कांस्टेंट इनके रीअरेंजमेंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड के रिजर्व्स विच आर प्रेजेंट इन द सॉइल इन फॉर्म ऑफ कार्बोनेट्स, इनका एक कॉन्स्टेंटली इनफ्लो और आउटफ्लो स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द कॉन्टिनेंटल कार्बोनेट स्टोर्स। बिकॉज वी सेट इन ड्यूरिंग द फेज ऑफ सेकेंड एटमॉस्फेयर कैल्शियम कार्बोनेट के डिपॉजिट्स हमारी अर्थ में सेटल डाउन होना शुरू हो गए थे, और इन्हीं डिपॉजिट में कॉन्टिनेंटल प्लेट के मूवमेंट की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और एटमॉस्फेयर में रिलीज होना शुरू हुई। या एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम कार्बोनेट की फॉर्म में ओशन बेड्स में सेटल होना शुरू हो जाती है। तो दिस इज अफेक्टिंग द प्रोपोर्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन आवर एटमॉस्फेयर ड्यूरिंग थर्ड एटमॉस्फेयर एवोल्यूशन। वो ऑक्सीजन जो कि सिंथेसाइज हो रही थी फोटोसिंथेटिक प्लांट में, ऑक्सीजनेशन इवेंट में साइनोबैक्टीरिया दे आर प्रोड्यूसिंग द लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन एयर
but that a large amount of oxygen in molecular form is not stable in atmosphere. इसकी रीज़न ये है कि उस थर्ड एटमॉस्फेयर की फेज के अंदर वो O2 की फॉर्म में जो ऑक्सीजन एयर में रिलीज हो रही है, दैट इज बीइंग यूज्ड इन रिड्यूसिंग मटेरियल्स, स्पेशली आयरन. आयरन की मेटल विच वाज प्रेजेंट इन दैट एनवायरनमेंट, दैट वाज बीइंग रिड्यूस्ड, और वो आयरन से आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट होती चली जा रही थी. तो वो प्रोपोर्शन जो कि ऑक्सीजन में O2 की फॉर्म में मौजूद था, दैट वाज बीइंग यूटिलाइज्ड टू फॉर्म ऑक्साइड्स इन soil. So resultantly, there was a drop in, we could say the proportion of oxygen in atmosphere that was not stable. Gradually, ये reducing atmosphere that was transformed or shifted towards oxidizing atmosphere. So oxidizing atmosphere में shift होने के बाद there was a possibility कि अब अर्थ की atmosphere में जो oxygen का proportion है ये comparatively stable रह सकता है. और 541 मिलियन ईयर्स पहले ऑक्सीजन का प्रोपोर्शन इतना स्टडी हो गया था कि वो 15% की लेवल के ऊपर मेंटेन रहता था हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर. ये ग्राफ शो करता है ऑक्सीजन की कंटेंट को अर्थ एटमॉस्फेयर में अलोंग विद द टाइम पीरियड. ये वो कुड सी कि इनिशियली द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन O2 के फॉर्म के अंदर इट इज़ लोअर एंड देन इट ग्रेजुअली इंक्रीजेज. बट आफ्टर दैट वी कुड सी कि 20% तक जब ये पहुंचता है, इट गोज अप एंड इट रीच अप टू 35%. 35% पहुंचने के बाद वी कुड ऑब्जर्व द फ्लक्चुएशंस, दे आर डिक्रीजिंग एंड देन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग विद द पैसेज ऑफ द टाइम. वो रीजंस जो कि ऑक्सीजन की इन फ्लक्चुएशंस के पीछे हैं, इनमें से दो जो हाइपोथेसिस हैं, वो उनमें से वन इज कि प्लांट्स दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन एंड कंज्यूम्ड कार्बन डाइऑक्साइड. साइनोबैक्टीरिया के साथ साथ प्लांट्स का एवोल्यूशन भी थर्ड एटमॉस्फेयर के टाइम पीरियड में कंप्लीट हो गया था. तो देयर वर द जिम्नोस्पर्म्स व्हिच वर फॉर डूइंग फोटोसिंथेसिस एंड दे वर रिलीजिंग ऑक्सीजन एंड दे आर कंज्यूमिंग द कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. एंड देयर वाज एन अदर फैक्टर दैट वाज वोल्केनिक इरप्शन. अभी तक वोल्केनिक इरप्शंस जो थी वो कंटिन्यूड हैं, और वो जो गैसेज रिलीज कर रही हैं उनमें से सल्फर इज द मेजर गैस. एंड दिस सल्फर ऑक्सीडाइजेज इटसेल्फ. And through this process of oxidation, it is consuming that oxygen which is present in atmosphere. तो ये सल्फर ऑक्साइड्स बना रही है अपनी ऑक्सीडेशन के थ्रू. रिजल्टेंटली वो एक कंज्यूम कर रही है एक प्रोपोर्शन का जो कि O2 के फॉर्म में हमारी एटमॉस्फेयर में मौजूद था. बट एट द सेम टाइम ये वोल्केनिक इरप्शन कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज करती हैं, और दैट कार्बन डाइऑक्साइड गैस वाज एडिंग अप इन द एटमॉस्फेयर, एंड दैट एडेड अप कार्बन डाइऑक्साइड वाज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स एंड साइनोबैक्टीरिया. एग्जैक्ट क्या रीजंस हैं कि ऑक्सीजन इस टाइम पीरियड में फ्लक्चुएट होता रहा इसका प्रोपोर्शन, एग्जैक्ट रीजंस के बारे में जो है वो कुछ अभी इतनी गारंटी के साथ साइंटिस्ट नहीं कह सकते. दे हैव गिवन द टू हाइपोथेसिस जिसको कि अभी हमने डिस्कस किया. अर्थ के एटमॉस्फेयर की एवोल्यूशन को एक समराइज करते हुए स्टडी करने के लिए वी विल वॉच दिस वीडियो. 0.5 billion years ago, the hot globe was surrounded by a thick layer of its original atmosphere, consisting primarily of hydrogen and helium. These light gases tended to float upwards and so gradually escaped into space. The cooling Earth was subject to violent volcanic eruptions, accompanied by the release of huge amounts of other gases: water vapor, carbon dioxide, ammonia, methane, and sulfur dioxide. At the prevailing high temperatures, ammonia and methane reacted with trace amounts of oxygen, resulting in the formation of a secondary atmosphere, composed chiefly of water vapor, carbon dioxide, and nitrogen. About 3.8 billion years ago, when the Earth's surface cooled down below 100 degrees Celsius, the water vapor condensed to form seas and oceans. Nearly 3 billion years ago, the first primitive life forms developed in the waters: blue-green algae and bacteria. The former began to utilize solar energy to produce nutrients by the process of photosynthesis. As a result, the oxygen content of the atmosphere started to increase. Ultraviolet radiation was harmful to the new living organisms, but it promoted the conversion of some of the oxygen into ozone. Because of this, an ozone layer gradually developed around the Earth, filtering out harmful ultraviolet radiation before it reached the Earth's surface. This made it possible for
land plants to appear on the Earth, causing in turn considerable increase in the oxygen content of the atmosphere. At the same time, the proportion of carbon dioxide began to fall because the gas was absorbed by the plants. This plant activity led to the formation of the present atmosphere about 200 million years ago. It has not changed much in all the time since. Today, 4/5 of the atmosphere is nitrogen, 1/5 is oxygen, and the remaining fraction consists of other gases such as carbon dioxide and water vapor. सो फ्रेंड्स, हमारा ये वाला टॉपिक की वीडियो भी कंप्लीट हो गई है, तो अब हम चलते हैं अपनी रीडिंग की तरफ। हमारी रीडिंग में आ जाते हैं हम। ड्यूरिंग द थर्ड फेज ऑफ द एटमॉस्फेरिक एवोल्यूशन का थर्ड एटमॉस्फेयर, ठीक है, द मूवमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट्स रिजल्टेड इन अ सिग्निफिकेंट इनफ्लो एंड आउटफ्लो ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. दिस ड्रास्टिकली अफेक्टेड द ओवरऑल कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर. द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन रीच्ड the stable levels, ठीक है, around 15% about 541 million years ago. Initially the oxygen released by the cyanobacteria and later by plants was involved in reduction of materials like iron, etc. ठीक है, with gradual increase in oxygen production instead of reduction. The atmosphere was being oxidized. Atmospheric oxygen levels peaked around 300 million years ago, reaching 35%, which shortly dropped to half and then increased in an oscillatory manner, attaining present day level at 21% approximately. This fluctuation in oxygen concentration can be attributed to multiple factors, for example, increased vegetation, volcanic eruptions and release of sulfur into atmosphere. Sulfur is capable of reacting with oxygen and forming sulfur oxides, thus altering the oxygen levels. ठीक है, higher amounts of carbon dioxide was released in volcanic eruptions, ठीक है, and for forest fires. However, the exact causes are unknown for fluctuations in oxygen levels. In this lesson, the students will learn about third atmosphere oxygen fluctuation, ठीक है. एटमॉस्फेयर के एवोल्यूशन की नेक्स्ट फेज दैट इज कॉल्ड एज थर्ड. सो फ्रेंड्स, हमारी जो ppts है इसमें भी नहीं है, तो हम यहाँ से ppts को पढ़ लेते हैं, ठीक है. एटमॉस्फेयर एंड इट्स एवोल्यूशन. Third atmosphere constant rearrangement of continental plates, inflow and outflow of carbon dioxide from large continental carbonate stores, ठीक है. इसके बाद में जैसे स्लाइड चेंज होगी हम वो स्लाइड कर देंगे. चलिए,
वापस और यहाँ पे आ गया हमारी इकोसिस्टम। ठीक है, अब हमारा सेशन जो है